Welcome, Twitch. So let's start it formally. As you know, it's very tough for me to be formal in these sessions. So still I will try to act formally. Okay, so unlike other topper talks that you have been giving since last few days, okay, I will be coming with something new again. Okay, I have named this particular series as a tactics talks because I feel that each one of us as an aspirant had been in some other situation, had been in some different situations according to our context, our circumstances. At the same time, what I feel that somehow at one point of time or other point of time, we all are relatable. It might be a case that one particular selected candidate or one particular non-recommended candidate might not be in equal scenario to you, but there might be some commonalities. So we will be working upon that only. Okay. So just to have a brief about you, but I will ask you to limit your introduction into 2-3 points. Okay. First, the UPSC journey, number of attempts, and when did you started the preparation? Okay, because then we will channelize this session to the. Okay. So hello everyone. My name is Zuj Goel, and I graduated in 2019 from NIT Bhopal. Thereafter, I did a job for 1 year till 2020 September 2020. Along with job, I started my UPSC preparation. I gave my attempt in 2020. My first attempt in 2020. I qualified prelims, but I could not qualify mains because along with job, I could not manage my mains preparation. In 2021, again, I reattempted, and that time I got interview call, but I missed the final list by 5 marks. And but by reserve list, I got into Pondix, and currently I'm serving as Commissioner of Municipality in Pondicherry. This was my third attempt when I have got All India rank 71. So this has been my journey. The journey was a little long, but I think by some strategies, by some tactics, and the blessings of God, I'm able to make it. Fine. So humble of you for the last some lines. Okay. So let's start with your journey when you were into the job. Okay. So you started your preparation, and how many hours were you able to put up? And what was your strategy to maximize your day? Because it might be a 5-day job or 7-day or 6-day job. Okay. So how many hours you were able to go for in weekdays, and how you utilize your weekends? Okay. So this was a major challenge for the people who prepare along with the job. As I was preparing along with the job, I had 6 day working office. So that was really difficult for me because 6 day working office means on 7th day you feel like taking some rest, going out somewhere, like all the kind of situations were there. Plus, along with that, I was staying in Gurgaon. Gurgaon is definitely a place where on weekend you cannot sit at the room and study. You have to go outside. Your friends are going outside. So, a lot of restrictions are also there. So, what I used to do on the weekdays during my commutation time to the office was 1 hour in the morning and 1 hour in the evening. So, I used to utilize those 2 hours for reading newspapers and current affairs because it was difficult to read portion at that time. So what I used to do, I utilized those 2 hours for studying my dynamic portion during the after the morning. I used to put in 2 hours. Like I used to wake up at 4:30 or 5 o'clock in the morning. I used to put 2 hours so that before going to office, I used to read some static portion. After coming from the office, I again used to put in 1 or 2 hours because it becomes very difficult at times to go to study after coming back from office. So around I think 3 to 4 hours uh, after or before office and 2 hours study. I think that is 1 hour only during the commutation. So I used to put in 4 to 5 hours daily during my during the weekdays. In the weekends, what I used to do, I used to wake up early, like 4 or 5 in the morning. And I used to plan my weekend very effectively. I used to study around 10 to 12 hours in with the different phases, like 3 hours, 2 hours in these kind of settings. So I used to cover majority of my things during the weekends. In the weekdays, what I used to plan, I used to plan the to learn from the videos. Like for economy, I was watching some videos. So
For economy, the videos section can be done during commutation or during weekdays because that does not require that much, concentration to put in and study like that. So that kind of things I used to do in the weekdays, and the rest of the things which require more concentration and which require more effort, I used to put that on weekends. So that was how I managed along with the job. So along with the job, I also figured out that I will leave my job only when I would be confident enough that now I can make it. Now I have covered my syllabus to a certain extent. It is not that I have directly left my job. I left my job only when I was confident enough that now I can crack prelims after 2 3 months before. So I left my job 2 months before the prelims. Okay, so concluding this in my terms, let me know if I'm getting anywhere you wrong. While in the job, you ensure that you get your basics right rather than going to the coachings and going for the foundation courses. You opted for your self-study, as you have pointed in a number of your talks. That self-study was the thing that you prepared for it, and then when you were in the job, you get your basics done, and when you left your job, it was about to bleed in the war, like practicing mains, practicing answer writings, rather than going into the 6 7 hours classes. Am I correct? Right, sir. Right, sir. Right, sir. Because it was very much clear that I will leave my job when my basics are done, when my basic study is done, and I will directly go for the fighting the battle, as you rightly put it out. Okay. So, Advait, here I would like to know the sources that you followed during the preparation of your basic as module which you prepare during the jobs. Like you mentioned some economics videos. This is an open platform. I will not mind that if you even if you take a number of coachings name, so you can directly take it. Okay, so here I will start with quality. Quality, Lakshmikant is a one-stop solution. I was reading that only. For economy, what I used to do, my friend has got an academy subscription. I initially I started watching videos of that, but I felt I was feeling asleep during watching the videos, so I could not complete it. So what I used to do, the Mrinal sir's notes are available in the market. So I purchased those notes from the market, and thereafter I studied from the notes because they are written very lucid form, pillar-wise approach is there. So it is easily understandable if someone is thorough with the basic concepts of the NCRTs and all. So economy I did like that. Geography, I think 11th, 12th NCRTs are fine. And for addition, for geography addition, GC Leong, I think many people suggest, but I personally do not like that book. So what I did was there is Rastanil ma'am's again Munal sir's earlier YouTube channel is there. So those videos are very good. I think those are made from GC Leong only. So Dastanil ma'am has beautifully explained all the concepts. So I made notes out of those videos, and they were really helpful in all my 3 attempts, in the pre as well as in the mains as well. So for geography, I did that. History, against modern history, I followed spectrum. Note another was spectrum and NCRT. Ancient history, what I did was there was this 2017 batch IPS Tushar Garg. So his his notes in digital format were available on Evernote. So he shared that. So I copied those notes, and after reading R.S. Sharma, I edited those notes. So I made his notes as my own notes because I thought that putting so much effort for ancient history won't give that much output to me. So I used his notes and edited my own notes to that notes only, and finally I revised from those notes only to minimize my efforts. Just that. For medieval history, again there is this 11th class Tamil Nadu board book is there. So I think medieval history I try to read from other sources, but it was literally boring for me. So I didn't study it. I used this Tamil Nadu board NCRT, and it was I think it was sufficient along with the 7th class NCRT. So it covers literally everything. The timeline is clear, and rest part is usually covered in art and culture. Art and culture I selectively did from Nitin Singhania. So Nitin Singhania's notes are also available on PDF. You can search; they are easily available. From the book, I selectively read some chapters like sculptures, paintings, dance, Jainism, Buddhism. So these are the favorite topics from the areas from which UPSC is supposed to ask the questions. So I read those chapters from Nitin Singhania. Along with that, for art and culture, I read this 11th class Fine Arts NCRT there. It's really a good book, and a good read. Everyone must read it.
So I read it. It's a good book, and UPSC is in habit of asking questions from that also. After that, I think I have covered history, I have covered geography, I have covered economy, I have covered polity. Now rest with environment. For environment, I tried to read Shankar IAS book earlier, but I found it little boring and lot of information is given, little outdated as well. So what I did was there is this PMF IAS booklet for environment. So I followed this PMF IAS booklet for environment for static portion first. Thereafter, I took their dynamic portion as well. That is also easily available on the internet. Or I think 50, 60 rupees they take to provide the dynamic portion of 1 year. So you can purchase that 1 year booklet also for the dynamic portion for the current affairs as well. So I did that. For science and tech, I was from science background, so I didn't read that NCRTs. But 12th class NCRT is there for biology, chapter number 13 to Biotechnology. 16, Yeah. biotechnology. Chapter number 13 to 16 that covers environment and as well as biology part. So that I read. Along with that, I covered it from PT 365 only. So PT 365 has to be followed for many of the things at the end for covering the current affairs. So I have covered all the static portion. For the dynamic portion, I think a newspaper is must thing. Nobody should ignore prelim. Nobody should ignore newspaper. Seeing the current trend and the current 2023 prelims paper, it could be said that the newspaper should not be missed at any cost, because when you read newspaper, you get your timeline clear. You get to remember things in a better way. So it's good that you read the newspaper. I used to read the newspaper, and thereafter I tried to read monthly compilations, but I could not complete them after 6 months. So what I did was I completed them from PT 365, which comes 3 months prior to prelims. So I covered from there. Also, sometimes I also try to follow this Insights IAS daily current affair is there for 10 to 15 minutes. You can just scroll through and read it. So what I used to do was after my dinner, when I used to walk around, so I used to scroll that Insights IAS daily current affair thing. So if I found something very useful, I used to copy it and paste it on my Evernote, again to minimize my efforts. So I did not pick my notebook to write it down. Just I cut it and paste it on my Evernote like that. Okay, fine. So, Dvij, now let's move to next phase of your life when you left the job. And now I will be focusing, as I know that you would have been in mind frame that, okay, first prelims, I think you missed it by margin and something, correct? No, sir. I qualified prelims in all my 3 attempts. Okay. In first attempt, I missed mains by 10 marks. Okay, yeah, mains by margin. Okay, yeah, sorry. Okay, so like what I wanted to learn from you, like whenever, okay, those who are writing questions and raising hands, yes, we will take all the questions in the end, not before that, because I have planned this session according to you. Don't you worry. Not in even a single question will be answered within the session itself. Okay, so okay, now let's focus on the area. See, once we are done with the base building, whatever sources you have mentioned, it's fine. And rest, be assured, you can take any coaching's name. I really do not care, and I will appreciate if people are going to write places actually. Okay, so I will not mind it. So it should be like a genuine talks rather than the topper talks. Okay, it's not about the highest mentor, but it's about the with success. That's it. Okay, but helped you. So now the second part, like it's very tough to start the first answer. It's since I run an integrated batch, I know people write 4 lines, 3 lines, 2 lines. So how was it for you? How you traveled this path? Like I know that you must have started with some half page or 1 page only, as we all started. But what was your strategy in the answer writing part? So what happened was there was COVID lockdown, and luckily we got some time before prelims to study for mains in my first attempt. So for 1 month, what I did was there is on Insights platform. There used to be some questions with some model answers. So what I used to do, I used to read those questions and those model answers, and based and write those questions and then match my answer with the model answer. Beforehand, I have read model answer, then I'm trying to write answer, because earlier if I see question and I do not know answer, how can I write it, है ना? So what I used to do was कि क्वेश्चन है और आंसर भी है, तो आंसर को पढ़ लिया और मुझे पता चल गया कि क्या है. अब मैं उसको तब मैंने वो पढ़ लिए, 3-4 क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए,
लेकिन मैं उसको तब नहीं लिखूंगा। सपोज मैंने सुबह पढ़ ली है तो सुबह नहीं लिखूंगा, मैं उनको शाम में लिखूंगा, है ना। तो 3-4 क्वेश्चन में आंसर मैं सुबह से पढ़ लेता था और शाम को उनको लिखने की कोशिश करता था। तो एटलीस्ट ये है कि कंटेंट तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद, फिर वो रिमेम्बरेंस पे है कि सुबह से शाम तक थोड़ा तो याद रह ही जाएगा, और एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इंट्रो में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है। तो शुरू में तो बहुत खराब आंसर आते हैं, जैसे सभी के आते हैं, और मेरे तो बहुत ही खराब आते थे। 1 महीने तक तो मेरे इतने खराब आंसर आते थे कि मुझे लगता था कि अगर मेरा प्री निकल भी गया तो मेंस तो नहीं निकलने वाला, मैंने आज तक एक भी आंसर नहीं लिखा। तो ये सभी के साथ होता है। तो आई आई थिंक कि जो पहला आंसर है वो आपको थोड़ा सा देख के लिख लें, या आई वुड सजेस्ट कि आप हिस्ट्री से शुरू करें, मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री सबने पढ़ी हुई होती है। तो लाइक इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट सम रिबेलियन, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, तो यू हैव सम आइडिया अबाउट इट कि क्या क्या हुआ था, क्या करना है। तो आप उसके पीवाईक्यूज उठा लो और वहां से शुरू करो, तो एटलीस्ट यू विल हैव समथिंग, सम कंटेंट टू राइट अबाउट इट। या अगर आपको लग रहा है तो पॉलिटी से शुरू कर लो। पॉलिटी में अगर कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया हुआ है तो आप उसके आंसर लिखने की कोशिश करो। जब आप 10-20 आंसर लिख लोगे, 1 महीना प्रैक्टिस कर लोगे, देन यू कैन ट्राई सम क्वेश्चन आंसर। तो मैं तो ऐसे ही करता था, मैं स्टार्टिंग में मैंने देख के ही आंसर लिखे हैं। उसके बाद मैंने प्री और मेंस के बीच में फिर जो मेरी प्री से नॉलेज आपकी बढ़ जाती है, जब आप प्री लिख लेते हो तो यू आर फॉलो विद द कंटेंट, फिर आप कंटेंट फिर आप लिखना शुरू कर देते हो। और इसमें एक और चीज है कि आप शुरू में ना पॉइंट्स लिखने की कोशिश करो। आप शुरू में ही पॉइंट्स लिखने की कोशिश करोगे तो वो बात तक हैबिट रहेगी। आई केम अक्रॉस पीपल जो शुरू शुरू में अब पैराग्राफ में लिखते हैं तो बाद में पॉइंट्स लिखने में डिफिकल्टी होती है। पॉइंट्स में लिखने में बहुत आसानी होती है क्योंकि आप कई चीजें ना बहुत पॉइंट्स में पढ़ते हो। जैसे अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो बहुत हम लोग पॉइंट्स फॉर्मेट में पढ़ते हैं, तो वही पॉइंट्स फॉर्मेट हम उसमें लिख दे रहे हैं आंसर में। इंट्रो कंक्लूजन बाद में लगा देना है कि इंट्रो क्या हो सकता है, कंक्लूजन क्या हो सकता है। तो पहले तो बॉडी बनाने की कोशिश करें, तो कंक्लूजन धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। Okay, so now as I suppose this was the practice or the way you started and it helped you in your first mains. Okay, and you fell short 10 marks as I remember that margin only. Because okay. of my optional. Yeah. Okay, so because of your optional, so I will take optional related question in the end only. Okay, so as UPSC also takes in the end only, na? So I will just follow the UPSC. Okay, so now it's about, let's talk about the GS. Okay, I want you to divide your GS strategy. First, you just mention the resources. I will not say that don't take any name again. You can take it, it is there. Okay, GS1, GS2, GS3, GS4, only resources. Then there are two mains and your GS strategy, how your GS strategy is different from the day you miss the 10 marks cutoff. Okay, and the day you were above the cutoff. Okay, means both of your attempts. Okay, and since we know when we write mains, okay, we have very limited time to improve upon. Okay, because here all we are whosoever has written mains over here, we know that when if you write mains, you are writing mains in September, then you will be like 2 months off. Then suddenly December comes and just 1 month for the some tinkering with the mains, and by Jan Feb you are again in the prelims mode because such a kind of paper it is. Okay, so I know that you have written mains every time. So every time you get very limited time to improve. Like I know people, those who skip the attempt and they improve by 150 marks. But as I said, the tactics talks is about, it's not the similarities, the commonalities. So how did you improve in the very limited time? First resources, then the comparison. That's it. I hope my question is clear, correct? So your question is clear. First, I'll just briefly mention that during my time, COVID phase was on. So 2 times I wrote mains in January. So I was having very little time for the next mains. Because when you write your mains in January, March is very near and you are preparing for another prelims, not for next mains. So that was the scenario. Now I'll come to resources. So coming to the GS1, modern history source is same, art and culture source is same, which is for prelims. So there is no difference. Coming to word history, for word history, what I did was there is this proper Kumat sir is there. I think all India rank 5. So I'll share the name. I'm just the name is slipping from my mind. Just mention on your Telegram channel whenever you get time. I'll mention this. So I printed out his notes
that was 20 to 24 page note, and they were very comprehensive and short. So I followed them for my word history. Along with that, what I did was some of the parts of word history. What I did, I purchased this test series paper is available like Vision and Forum. I took Vision and Forum test series paper from the market for word history. So I took every year they release one paper which is dedicatedly given to word history only. That has 20 questions. So two papers I took from Vision and Forum, so 40 questions of word history. I read those questions. I completely memorized those 40 questions. अब 40 क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए हैं और वो आपको जितने टॉपिक्स हैं सिलेबस में मेंशन वो आपने कवर कर लिए हैं। अब वर्ड हिस्ट्री में ज्यादा की जरूरत नहीं है क्योंकि हार्डली एक क्वेश्चन आता है और वो 40 क्वेश्चंस आपने याद कर लिए, कंटेंट आपके पास सफिशिएंट है। एटलीस्ट अगर जब 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कोई ज्यादा अच्छा लिख देगा तो 6 या 7 मिल जाएंगे, बट एटलीस्ट यू विल स्कोर 5 मार्क्स। तो 5 नंबर का जो अगर आप 1 नंबर अगर कम भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वर्ड हिस्ट्री का सिलेबस इतना ज्यादा है कि उसको हम नहीं कर सकते। अनदर थिंग हमसे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की 11th से 12th क्लास की कोई एक एनसीईआरटी है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की, तो मैंने वो रेफर की थी, वो काफी अच्छी है। फिर एसआरटी से मुझे उस एनसीईआरटी से रिलेटेड ही नोट्स मिल गए थे पोस्ट इंडिपेंडेंस की, तो मैंने उस नोट से रिवाइज भी कर लिया था। वो एनसीईआरटी ही है जो बेस मटेरियल है, वो सफिशिएंट होती है पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए। उसके बाद आता है हमारा सोसाइटी। सोसाइटी के लिए भी एक 11th क्लास की एनसीईआरटी है, सोसाइटी की 2 एनसीईआरटी है इनफैक्ट, मैंने वो दोनों अपना बेस मटेरियल यूज किया था, तो वहां से पढ़ा था। उसके बाद मैंने विजन का जो वैल्यू एडिशन मटेरियल है जैसे रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, ये सारे टॉपिक्स पे 2-2 पेज के नोट्स बना लिए थे। उसके बाद एडसारटी ने मटेरियल प्रोवाइड किया था, मैंने उनका मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया था जिसमें लाइव आंसर राइटिंग और ये सब इंक्लूडेड था। तो उसमें वो कुछ कुछ मटेरियल प्रोवाइड करते थे, जैसे रीजनिंग के ऊपर हो गया, कुछ कोड्स हो गए, इंट्रो कैसे कर सकते हैं, कंक्लूजन में क्या डाल सकते हैं, तो वैसा मटेरियल उन्होंने प्रोवाइड किया था, तो मैंने वो भी यूज कर लिया। तो सोसाइटी मेरा वहां से पूरा कवर हो गया था। उसके बाद बता ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में अगेन मैंने कुछ नया फॉलो नहीं किया, 11th-12th की जो एनसीईआरटी थी उसके अलावा मृणाल में वो राजधानी मैम के जो मैंने वीडियोस देखे थे उसके नोट्स बनाए हुए थे, वो यूज किए। फोरम का उसमें थोड़े जो टॉपिक वाइज जैसे क्लाइमेटोलॉजी और नोट्स अवेलेबल है 20-20 पेज के, वो इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल हम फ्री में निकालते हैं। तो मैंने इस बार वो भी यूज कर लिए थे क्योंकि यूपीएससी अब ज्योग्राफी से थोड़े डीप क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि रिसेंट ट्रेंड चल रहा है पिछले 2 सालों से। तो आई विल रिकमेंड कि आप थोड़ा सा उसको फोरम की बुकलेट से भी एक बार देखते हैं। आई थिंक पेपर 1 कवर्ड है। पेपर 2 को मैं ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड आईआर। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत प्री के लिए सफिशिएंट होती है, बट वो मेंस के लिए सफिशिएंट नहीं है। लक्ष्मीकांत बेसिक सोर्स है, लक्ष्मीकांत को सिर्फ पढ़ना कैसे है, उसमें से फ्रेजेस निकालने हैं, उसमें से वैल्यू एडिशन कंटेंट निकालना है, आर्टिकल्स निकालने हैं, और जो बेसिक चीजें हैं जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ कहाँ पे बात हुई है चैप्टर में, अपने को वो निकाल लेना है मेंस के लिए। उसके बाद मैंने क्या किया था कि जो अतीश माथुर सर है वो उनका मेन स्पेसिफिक मॉड्यूल की एक बुकलेट आती है जो वो अपने चैनल पे फ्रीली प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने, और उसमें वो पॉलिटी के जो चैप्टर्स हैं जैसे सेपरेशन ऑफ पावर, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, जो भी इश्यूज हैं या डिबेट चल रही है, वो अपने चैनल पे वो मोइंस मॉड्यूल में अपलोड करते हैं। तो मैंने वो यूज करके क्या किया था, उसको एक बार रीडिंग दिया, अगली बार की रीडिंग में उसके A4 शीट पे नोट्स बना लिए। नोट्स इन द सेंस कुछ लिखा नहीं, सिर्फ जो वैल्यू एडिशन कंटेंट था कि सपोज सेपरेशन ऑफ पावर है तो क्या क्या आर्टिकल्स आ सकता हूँ, क्या क्या एग्जांपल आ सकते हैं, क्या क्या केस आ सकते हैं, लाइक दैट। तो 3-4 पेज के वो पूरी अराउंड 180-200 पेजेस की उनकी फाइल थी, उसमें से 4-5 पेज में मेरे पूरे नोट्स आ गए थे। तो वो मेरे को पूरी बुक रिवाइज नहीं करनी है, 4-5 पेज रिवाइज करना है, मेरे पास कंटेंट है कि आगे कंटेंट डालना है। तो ऐसे मैंने अपना पॉलिटी कंप्लीट किया। उसके अलावा मैंने लैंडमार्क जजमेंट्स की एक फाइल बना ली अपने पास, वो एवर नोट में डाल के कि क्या क्या लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, कहाँ का यूज हो सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, कि अगर मैं आर्टिकल 21 लिख रहा हूँ तो उसके रिलेटेड जजमेंट क्या है। जैसे कि इस बार रिलेटेड टू एनवायरमेंट एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने एमसी मेहता केस मेंशन किया था, तो वो एक फाइल मैंने बना ली थी और लास्ट में उसको उसका प्रिंट आउट निकाल लिया था। तो वो पॉलिटी ऐसे कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है गवर्नेंस। गवर्नेंस के लिए मैंने विजन का वैल्यू एडिशन मटेरियल की मेरा प्राइमरी सोर्स था, वो यूज किया। उसके बाद ओनली आईएएस की एक बुकलेट आती है, गवर्नेंस की अलग से आई थी, आई थिंक 30 से 40 पेज की बुकलेट थी। तो उसमें वैल्यू एडिशन कंटेंट मिल जाता है, एग्जांपल्स मिल जाते हैं, क्योंकि गवर्नेंस में आपको आंसर लिखने के लिए एग्जांपल्स वगैरह कुछ डालने पड़ेंगे, अच्छा सा दिखाना पड़ेगा कुछ। सेकेंड ईआरसी की आप उसमें रिकमेंडेशन स्कोर कर सकते हो। तो मैंने सेकेंड ईआरसी की जो समरी होती है उसमें से भी अपने पास कुछ पॉइंट्स लिख लिए थे अपनी डायरी में, तो वो भी मैं कोट कर देता था गवर्नेंस वाले पार्ट में। फिर आता है आईआर। आईआर में दो चीज है, स्टैटिक पार्ट और डायनामिक पार्ट।
तो स्टैटिक पार्ट मैंने क्या किया था कि स्टैटिक पार्ट मैंने खुद से कवर किया था। मतलब कि जैसे कि अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, इंडिया श्रीलंका का कुछ आर्टिकल आया तो मैं वो क्रॉप कर लेता था और अपनी फाइल में सेव कर लेता था। तो मेरे पास इंडिया और सपोज इंडिया श्रीलंका का कुछ कंटेंट है, क्योंकि कई बार न्यूज़पेपर में बहुत सारी डिटेल्स आती है कि क्या हमारा ट्रेड रिलेशन है, क्या सिक्योरिटी रिलेशन है और बाकी सब चीजें। तो वैसे आईआर का एक कंटेंट मैंने खुद से प्रिपेयर किया। बट आईआर ऐसी चीज है कि सब कुछ खुद से नहीं कर सकते। तो लास्ट में मेन 665 आता है, डायनामिक क्वेश्चन वहां से कवर हो जाता है ना। तो आईआर का स्टैटिक क्वेश्चन एक जो है वो मैंने खुद से कवर कर लिया न्यूज़पेपर आर्टिकल से, या खुद से सर्च करके कि इंडिया श्रीलंका के बारे में लिख रहा हूँ तो मैंने गूगल कर लिया इंडिया श्रीलंका रिलेशंस। तो नेट पे बहुत सारी वेबसाइट है, कुछ डिफरेंट कोचिंग्स की इजीली अवेलेबल करा देती है, इसलिए इजीली आप सर्च करोगे मिल जाएगा। तो वैसे हर किसी का तीन चीजें हैं, बायलैटरल रिलेशन, ग्रुपिंग्स और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन। आप तीनों को सर्च कर करके पीआरएस वेबसाइट सर्च करके तीनों के ऊपर नोट्स बना लो कि बायलैटरल रिलेशन इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। डायनेमिक कंटेंट आपको मेल 65 प्रोवाइड करा देगा और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स प्रोवाइड कर देंगे। तो ये एक आईआर के लिए सफिशिएंट स्ट्रेटेजी होती है कि, और आईआर में मतलब मुझे लगता है कि आंसर को लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कंटेंट के। जैसे कि क्या होता है कि आईआर का जब आप आंसर लिख रहे हो तो उसको मल्टी डायमेंशनल वे में लिखो कि अगर मैं इंडिया श्रीलंका की बात कर रहा हूँ तो मैं ट्रेड की बात भी करूंगा, सिक्योरिटी की बात करूंगा, सागा डॉक्ट्रिन बोल दूंगा, इंडिया और श्रीलंका किस ऑर्गेनाइजेशन में साथ में पार्ट है उसकी बात कर दूंगा, हमारे मिलिट्री कुछ एक्टिविटीज हो रही होंगी, एक्सरसाइजेज हो रही होंगी, वो मैं उसके कंक्लूजन में डाल दूंगा, वे फॉरवर्ड में डाल दूंगा, कैसे रिलेशन इंप्रूव करें, कहाँ कोऑपरेट करें उनसे। मैं इंडिया में डिजिटाइजेशन की बात चल रही है तो हम क्या श्रीलंका को डिजिटाइजेशन के ऊपर कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, उनसे पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो सच थिंग्स की उसको अपने आंसर को मैं थोड़ा काफी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करता था आईआर में, क्योंकि जो मल्टी फेसेटेड रिलेशनशिप की हम बात करते हैं आईआर में कि मल्टी फेसेटेड रिलेशनशिप होना चाहिए हमारा, तो वो क्या आंसर्स में भी दिखना चाहिए। तो ये एक आईआर का पूरा पोर्शन था जो मैं कवर किया। उसके बाद आता है जीएस3। जीएस3 में इकोनॉमी में अगेन मुंडाल सर के नोट्स थे, वही वही किया। एग्रीकल्चर वाला पोर्शन मैंने क्या किया कि अगेन जो सारे टर्म्स हैं वो गूगल सर्च, जैसे कि एग्री प्रोसेसिंग है, एग्री मार्केटिंग है, गूगल सर्च करो आपको कंटेंट इजीली अवेलेबल हो जाएगा। हर किसी के ऊपर दो दो पेज लिख लिया अपने पास बेस मटेरियल। वैल्यू एडिशन के लिए लास्ट में मेन 65 आता है, वो डायनामिक क्वेश्चन स्कीम्स वगैरह सब प्रोवाइड कर देता है, तो वहां से कवर हो जाता है। मैंने बस दो चीज इसमें एक्स्ट्रा की इकोनॉमी और एग्रीकल्चर वाले पार्ट में। जो नीति आयोग की रिपोर्ट थी इंडिया एट 2022, मैंने वो रिपोर्ट को बहुत अच्छे से पढ़ी, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, अगेन रिपोर्ट पढ़ी और उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए 3-4 पेज में। तो मेरे को 3-4 पेज ही का ही इसमें से जो कंटेंट था वो निकाल लिया कि जो वैल्यू एडिशन की तरह यूज हो सकता है, जो बाकी सबसे अलग है। अगर मैं लेबर रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ तो नीति आयोग में कुछ कोई पोर्टल है, आईएमएस पोर्टल है समथिंग लाइक, वो नीति आयोग को पता है, बाकी शायद किसी को नहीं पता है। नीति आयोग की कुछ सजेशन है जो आप अपनी सजेशन में वे फॉरवर्ड की तरह यूज कर सकते हो। जैसे कि आई रिमेम्बर कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस था, तो उसके ऊपर नीति आयोग ने बोला था कि चेंज एमएसपी टू एमआरपी, मिनिमम रिजर्व प्राइस। तो ये मैंने अपने एक कंक्लूजन में कोट कर दिया, वे फॉरवर्ड कोट कर दिया और लिख दिया कि एज सेड बाय नीति एट द रेट 2022, लाइक दैट। तो वो मैंने नहीं बोला है, वो नीति नीति आयोग ने बोला है, तो वो वैलिडेट भी हो गया। तो ऐसे करके वो स्टेटमेंट्स काम आ जाते हैं और आपके पॉइंट्स को वैलिडेट कर देते हैं, क्योंकि आप खुद से जनरलाइज लिखोगे तो कम वैल्यू क्रेडिबिलिटी होगी, नीचे आप के से लिखोगे तो थोड़ी ज्यादा क्रेडिबिलिटी होगी। फिर उसमें जो मैंने क्या किया कि बाकी जो रिपोर्ट्स आती है, इकोनॉमिक सर्वे होता है, इकोनॉमिक सर्वे विभाग सर हैं उनके फ्री भी अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पे लेक्चर्स। इकोनॉमिक सर्वे के थोड़े लेंदी होते हैं, 1-1 घंटे का, हर मतलब आठ आठ अगर 8-9 चैप्टर्स में तो 8-9 घंटे में कवर करते हैं वो। बट आप उनको धीरे धीरे करके देखो, उनके नोट्स बनाओ, बहुत ब्यूटीफुल कंटेंट आता है इकोनॉमिक सर्वे में। जो एक्चुअल ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज होती है वो इकोनॉमिक सर्वे में होती है और वो आपको अपना आंसर्स में लिखनी है, तो वो आपको वहीं से मिलती है। जब आप वो 8 घंटे के लेक्चर देख लेते हो, उनके नोट्स बना लेते हो, तो डेफिनेटली फिर आप वही लैंग्वेज, वही कीवर्ड्स यूज करोगे जो इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है, जो गवर्नमेंट की लैंग्वेज है। तो वो बहुत हेल्प करता है। सेकंड आता है उसमें अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट में अगेन सोर्सेज प्रीलिम्स वाला ही रहता है। उसमें क्या होता है कि मेन 65 होता है वो डायनामिक क्वेश्चन सारा कवर कर देता है। एनवायरनमेंट में मेजरली क्वेश्चन डायनामिक क्वेश्चन से आजकल ज्यादा आ रहे हैं कि COP 26 में क्या हुआ या ये सब चीजें। तो एनवायरनमेंट में कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ वही किया था। साइंस एंड टेक में भी अगेन मेन 65 चीजें कवर कर देता है और उससे ज्यादा कुछ बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत वेग चीजें हैं। तो मेन 65 जो आता है विजन का, वो कवर कर देता है। और उसमें क्या होता है कि स्टैटिक क्वेश्चन भी दिया होता है। तो आई पर्टिकुलरली फोकस ऑन स्टैटिक क्वेश्चन, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है,
तो अगर नैनो टेक्नोलॉजी आप लिख रहे हो तो उसके ऊपर आपके पास ना डाइवर्सिफाइड एग्जाम्पल होने चाहिए। तो आप उस स्टैटिक पोर्शन के, मैंने जैसे प्रिंट निकाल लिया स्टैटिक पोर्शन का विजन की बुकलेट से, उसमें अगर मेरे को कुछ अच्छा एग्जांपल मिल गया न्यूज़पेपर से कहीं से तो लिख दिया उसमें। नैनो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो आप मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, जहां भी आप डाल सकते हो वो एग्जाम्पल आप डाइवर्सिफाइड अपने नोट्स में डालो। नोट्स में डालेंगे तभी एग्जाम तक जाएंगे, वरना नहीं जाते, वहां याद नहीं आते। तो साइंस एंड टेक कवर्ड है। उसके बाद आता है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि जीएस3 में मार्क्स इंटरनल सिक्योरिटी से ही सबसे ज्यादा आते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अगेन मैंने विजन का वैल्यूएशन मटेरियल फॉलो किया था, और कुछ टॉपिक्स मैंने खुद से भी सर्च किए थे, जैसे एक्सट्रीमिज्म हो गया, लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म जो है, तो सपोज उसका करंट स्टेटस क्या है, तो आप खुद से एक बार जाके देख लो वेबसाइट पे, कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कि क्या स्टेटस चल रहा है, कोई पीआईबी में कोई रिपोर्ट तो नहीं आई, कुछ नया समाधान डॉक्ट्रिन आई है। तो एक बार आप खुद से भी सर्च करके देख लो कोई टॉपिक्स हैं। अदरवाइज विजन का जो मेन 65 होता है और वैल्यूएशन मटेरियल होता है, वो जितने भी आपके मेंस पे टॉपिक होते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के, वो कवर करता है। एक टॉपिक होता है इंटरनल सिक्योरिटी में ऑर्गेनाइजेशंस वाला, इसमें सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना होता है, कि सीएपीएफ है या ये है, तो उसके लिए एक अशोक सर आईपीएस हैं, तो उनकी एक बुक है इंटरनल सिक्योरिटी की, तो मैंने वो वाला चैप्टर वहां से किया था, केवल वो वाला चैप्टर, पूरी बुक नहीं, केवल वो वाला चैप्टर। उन्होंने काफी अच्छे से समझाया हुआ कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फंक्शन हैं। आई थिंक जीएस3 में सभी चीजें कवर्ड है। जीएस4 को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, स्टैटिक मतलब पहला पोर्शन सेक्शन ए और सेक्शन बी केस स्टडी वाला। तो सेक्शन ए के लिए इनिशियली मैंने अनअकैडमी के जो अपडेट करके फ्री वाले जो अवेलेबल हैं वो वीडियोस, मैंने इनिशियली वो देखे थे, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था कैसे करना है। और एक लेक्सिकन करके बुक थी, मैंने वो पढ़ी थी, लेकिन वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आउटडेटेड है, क्योंकि उसमें कंटेंट ऐसा कुछ यूजफुल मिलता नहीं है। तो आई एम फ्रैंकली टेलिंग, तो मैंने इनिशियली, मुझे पता नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर दिया अपना लेक्सिकन और वो सब पढ़ने में, वो मेरे नोट्स भी नहीं बन पाए। तो उसके बाद मैंने क्या किया, वो अपना बेसिक मटेरियल बना के, जो फोरम है, फोरम की रेड बुकलेट आती है, बहुत अच्छा कंटेंट होता है उसमें एथिक्स का, तो मैंने वो यूज की थी अपना सोर्स बनाने के, और चैप्टर वाइज सारी चीजें कवर कर ली थी विद एग्जांपल। फिर मैंने ओलिया से बुकलेट उठाई थी एथिक्स की, वो भी 40-50 पेज की थी, तो उससे भी कंटेंट निकाल लिया। सी अवर मेन कंसर्न इज कंटेंट जहाँ से मिले अच्छा वाला, वो निकाल के अपने पास रख लेना है ना। तो क्योंकि एथिक्स में बहुत डाइवर्सिफाइड एग्जांपल चाहिए, वो डिफरेंट थिंकिंग चाहिए, डिफरेंट टाइप के आंसर राइटिंग चाहिए, तो अपने को कंटेंट थोड़ा ज्यादा चाहिए, फिलोसफिकल एंगल चाहिए, कोर्स चाहिए, तो ये अपने पास होना चाहिए, तो वो सब मैंने निकाल लिए थे। उसके बाद क्या किया था हम लोगों ने कि हम लोग 3 फ्रेंड्स हैं, मैं, शुभतोष और असल, हम तीनों ने साथ में बैठा था। तो 2013 से लेके 21 तक के जितने पीवाईक्यूज थे इसके, वो सिर्फ वीडियो कॉल पे बैठ के हमने आफ्टर प्री 3-4 दिन में सारे लिख लिए, 13 से लेके 21 तक के, विद डिफरेंट डायमेंशन। जैसे अगर एक क्वेश्चन है हिस्टोरिकल, इंटरनेशनल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जितने भी डायमेंशन है सब में तीनों का दिमाग चल रहा है, तो तीनों के एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, और हमने खुद की मेहनत से बनाया है। तो हमने वो सारे एग्जाम्पल्स एक फाइल में डाल लिए। तो उसके बाद हमने फिक्स का कोई सोर्स नहीं उठाया, सिर्फ वो फाइल इतनी कॉम्प्रिहेंसिव हो गई थी, इतने उसमें एग्जाम्पल्स कोर्स हो गए थे, और हमारी स्ट्रेंथ भी डिफरेंट थी। जैसे कि मैं एग्जाम्पल्स को ज्यादा लिखता था, तो मैंने एग्जाम्पल्स डाले। शुभतोष है मेरा फ्रेंड, वो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड का होता है, तो उसके पास कोर्स थे, तो उसने कोर्स डाले। तो ऐसे शुभ ऐसी असर था, उसके पास केस स्टडी थी, तो हमने वो डाली, तीनों का एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट बना लिया, और बाद में उसी को रिवाइज किया अंडरलाइन कर करके। इतना कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट था वो कि हमें कंटेंट ज्यादा पड़ता था, फिर स्पेस कम पड़ता था। तो हमने इतना, और वो ये था कि अगर मैं आपको शेयर भी करूंगा तो आप यूज नहीं कर पाओगे, तो वो हमने खुद अपनी मेहनत से बनाया था, कुछ ब्रेनस्टॉर्म करके। तो द थिंग इज कि ब्रेनस्टॉर्म करना जरूरी है। आई एम नॉट टेलिंग कि डॉक्यूमेंट, आई एम टेलिंग अबाउट द ब्रेनस्टॉर्मिंग एथिक्स में। सेक्शन बी होता है, सेक्शन बी केस स्टडी का। तो मुझे क्या लगता है कि केस स्टडी में अभी जो मार्केट में जो चीज चल रही है, टेम्पलेट चल रहा है, स्टेक होल्डर लिखना ही लिखना है, ये एथिकल इशू लिखना ही लिखना है। सी ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप इंट्रो के 3-4 वर्जन हो सकते हैं, आप उनमें से कोई लिखो, कि या तो उसका रख समझा दो, या आप उसका जो एसेंस है वो करंट से लिंक हो रहा है, वो करंट हैपनिंग हुई है उससे लिंक है, तो वो उसमें आप लिख सकते हो, या कोई एग्जांपल लिख सकते हो, या कोई डेटा भी डाल सकते हो, समटाइम्स डेटा भी चल जाता है कि ये डेटा है। बॉडी में जो स्ट्रिक्टली पूछा गया है वो ही लिखो। स्टेक होल्डर्स वहां पे लिखो जहां पर आपको सपोज 5, इसे इस बार 5-5 क्वेश्चन पूछे थे, तो स्टेक होल्डर्स लिख के टाइम वेस्ट क्यों करना है? 2 क्वेश्चन पूछे हैं, तब आप स्टेक होल्डर्स लिखो और उसको थोड़ा अच्छे से समझाओ कि ये है। अदरवाइज नो नीड पूरा टेम्पलेट फॉलो करने की, आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है। एंड आई कैन से दिस कि हमारे तीनों की ही 110+ मार्क्स आए हैं, है ना।
तो और लास्ट ईयर भी मेरे आए थे, तो आई कैन से दिस कि वो टेम्पलेट वर्क नहीं करता है हर जगह, थोड़ा सा चेंज चाहिए, है ना। अब बाकी इसमें क्या करना है कि कंक्लूजन में मैं क्या करता था कि फिलोसफिकल एंगल ना कंक्लूजन में डालने की कोशिश करता था। जैसे कि अगर मैंने केस स्टडी सॉल्व की है, बीच में तो चीजें लिखी हैं, कीवर्ड्स लिखते हैं इसके साथ, लेकिन लास्ट में सपोज वो यूटिलिटेरियन फिलोसफी से लिंक्ड हो रहा है या कांटियन फिलोसफी से लिंक्ड हो रहा है, तो मैं उसको ना वहां डालने की कोशिश करता था, उसको लिंक करने की कोशिश करता था। क्योंकि अगर आप उसको एंड में एग्जाम में कुछ चीज दे जाओगे कि ये इस फिलोसफी से लिंक्ड हो रहा है, मैंने इस फिलोसफी से इसको सॉल्व किया है, या आई थिंक दिस अबाउट दिस क्वेश्चन, तो वो काफी अच्छा रहता है। तो दैट आई डिड फॉर एथिक्स। आई थिंक आई Okay. हैव कवर्ड the GS. Okay, so before coming to optionals, I will again come to the real life situation, since you mentioned the role of your peer group, and to be mentioned that all of you got the rank this year and you will be enjoying together your time in Lavasana after grinding together over here. Okay, so like, but I feel people in the old Rajendra Nagar वो चाय पे चर्चा पे बैठ जाते हैं. People create Telegram groups and it becomes messy. Okay, how you guys ensure that this should be productive? One thing is for sure, that more than 3 people or 4 people, if a group is more than 4 people, then it is not going to work, certainly. Okay, until unless someone is there to dominate कि नहीं बर्बाद हो रहा है, we have to be there. Okay, I will come to your interview group later on because वहाँ पे 8 मेंबर थे, तो हम बात करेंगे उसका बाद में, ठीक है. So how to make these kind of group, or how to identify, because since you all were the college people, okay, how you ensure that you all were on same page when it comes to the productivity? So there are two things here. पहला तो कि as you rightly put it out, 3 से 4 लोग होते हैं तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, डिफरेंट थिंग्स होती हैं. बट इन अवर केस क्या था कि हमारी बेशक पढ़ने का स्टाइल अलग था, और हमारा इवन तीनों का राइटिंग स्टाइल भी डिफरेंट है. बट द थिंग वाज कि हम तीनों के काफी सोर्सेज सिमिलर हमने रखे, चीजें सिमिलर की, और हम ना, एक जो मुझे चीज लगती है कि हमारे तीनों के बीच में ना कभी भी कंपटीशन नहीं था. व्हाट आई सी इज कि जब पीयर ग्रुप बनता है तो आपस में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, बल्कि हमारे में ऐसा नहीं था. कि सपोज असद था, तो असद के लास्ट ईयर 94 मार्क्स आए थे फिक्स में, एंड ही वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अस कि मेरा फिक्स तुम लोग कराओगे, आई डू नॉट नो एनीथिंग लाइक दैट. सो वो एक होता है, तो हमने उसका एथिक्स इंप्रूव कराया, हमने उसके साथ किया, और उसके बाद 120 मार्क्स में एथिक्स में ना. तो वो जो चीज होती है, मुझे लगता है कि जब आप गिविंग वाली चीज रखते हो, मतलब गिविंग वाला एटीट्यूड खुद रखते हो, तो सामने वाले में भी वो गिविंग वाला एटीट्यूड आता है कि नहीं, ये भी अपना भाई है या बहन है, लाइक लाइक दैट. तो मुझे लगता है कि पहले तो खुद का ही माइंडसेट चेंज करना चाहिए. जब आप 3-4 लोगों का ग्रुप बना रहे हो तो कंपटीशन उसमें ना करें, और एक खुद का माइंडसेट ही ऐसा रखें कि कोऑपरेटिव टाइप का, कि हम साथ में लगातार जाएंगे. उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, बट ट्रस्ट में लोग जाते हैं और हम जा रहे हैं, ठीक है. तो वो लाइक पहले तो माइंडसेट वाली बात हो गई. सेकंड थिंग आती है कि कैसे मैनेज करें. तो हमारा क्या होता था कि हम हर वीक पे थोड़ा स्ट्रेटेजाइज कर लेते थे कि हमको आगे प्रोसीड कैसे करना है. कि सपोज हम अगर अभी GS4 स्टार्ट कर रहे हैं, तो तीनों GS4 कर रहे हैं, और GS4 हम लोगों ने टाइम सेट कर लिया कि इस डेट तक तीनों खत्म कर लेंगे एनी हाउ. हमारा पढ़ने का टाइमिंग भी अलग था. मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, असद जो है वो नाइट में पढ़ता था, तो मीट करना भी हम लोग को काफी डिफिकल्ट होता था कि हफ्ते में एक ही मीट हो पाती थी, वो भी कोई ऐसा टाइम रख लिया रात दोपहर में 2-3 बजे रख लिया कि तीनों जागे हुए हों, आधे लोग सोते रहते थे. तो डिफिकल्टी होती है, बट आप एक बार स्ट्रेटेजाइज कर लेते हो और एक दूसरे को ट्रस्ट करते हो कि नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं कर सकता हूँ, तो मैं दूसरे की इम्प्रूव करा दूंगा. कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं सीख सकता हूँ. मुझे लगता है वो लर्निंग वाला एटीट्यूड अगर आप में होता है, और आप दूसरों की हेल्प वाला एटीट्यूड और लर्निंग वाला दोनों साथ में होने चाहिए, तो आप कर लेते हो. स्ट्रेटेजाइज करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई वॉर नहीं है, बट स्ट्रेटेजाइज हो जाती है चीजें अगर आप खुद का माइंडसेट थोड़ा सही रखो और फेवरेबल रहो. तो मुझे तो यही लगता है. बाकी तो स्ट्रेटेजी तो आप बना ही लोगे कि बैठ गए कि भाई हम 10 दिन में खत्म कर लेते हैं, फिर ये वाले टेस्ट दे लेंगे, ये वाले टेस्ट लगा लेते हैं, लाइक दैट यू प्लान. Okay, fine. So now coming, since we know how that you guys improve, what sources you prepared and all. Now let's come to your optional. Since like I think you are the topper of anthropology, correct? I don't know. I think one more person has some marks. I think 5 marks more than me. But yeah, second topic. Okay, means still you can say a top Yeah. cream. Okay, cream is something like 5-7 people we can include. Definitely. So as I'm not from the anthropology background, but I know that some of initiatives that I would like to mention over here,
Dwij is quite active on his Telegram channel, and he and Asad has decided to collaborate and help the people who are appearing in the mains from anthropology. So you can join that group. Certainly that will be properly verified, and it's not like the 2024 people will be allowed to join or something. Okay, because it's a mains oriented, and certainly when these things are being there, so there are certain things in mind to help max. ओके तो ऐसा हो सकता है जिन लोगों को इन लोगों ने हेल्प किया आई एम जस्ट गिविंग हिम आइडिया बिकॉज ही नोज माय टास्क लाइक मैं किसी को तैयार करता तो मैं इसको यूज भी करता तो इट माइट बी केस दैट द गाइस दोस हु आर बीइंग हेल्प्ड बाय द्विज they will be helping the people who are in 2024. So I'm just giving you food for thought. So never do anything for free, as I say, in which you are good at. Okay, make sure that others also get benefited from your initiative, and it should not die down. Okay, don't think over it. So you guys can join over there. And now, which I will give you 3 questions only. Apart from that, whatever you want to mention regarding the anthropology, you can mention on your own. My first question will be, what was your first phase when you were reading anthropology first time? Okay. Second question will be, what was your strategy to revise the things? How many pages you had as a short notes, especially in those last 4 or 5 days just before the mains? Did you revise the same before your GA optional paper 1 and optional paper 2, the gaps that we have 2 hours? Were your short notes good enough to be revised in that time? Last, how you related it to dynamic, how you utilized your newspapers for the anthropology? At least give 1 or 2 examples apart from these 3 questions, whatever you want to mention, because we are moving to the last part of our tactic talks. Okay. So the first question was how I started Anthro and I got into it. So there was this Anudeep Dhruv sir, All India Rank 1 2017. So I somehow read his blog. He was very famous by then. So I came across anthropology. He suggested one book for casual reading. Amber and Amber, there's one book for casual reading. He also started with that. So I read this book, 5-6 chapters I found it very interesting. Coming from the science background, this was the first time I was knowing about family, marriage, kinship in that detail. I used to think like, हाँ ठीक है, ये भी है, ऐसा है, ये वो है. But फिर science background में, जो लोग science background से हैं, they can relate it. फिर देन आई रीड कि कल्चर रिलेटिविज्म जैसी भी चीजें होती है, होलिज्म जैसी भी चीजें होती है. तब तक मैं चीजें अपने पर्सपेक्टिव से देखता था. एक कल्चर रिलेटिविज्म वाली जब आप चीज पढ़ते हो, देन यू गेट टू नो कि हर कल्चर अपनी तरीके से चीजें देखता है, उनका अलग परसेप्शन होता है. तो वो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा था इनिशियल फेज में. उसके बाद देन आई रेड द सिलेबस एज सब लोग पढ़ते हैं. तो मैंने देखा उसमें जेनेटिक्स वाला पार्ट है, वो थोड़ा बायो से रिलेट होता है. तो आई कैन अंडरस्टैंड बायो लिटिल बिट बिकॉज साइंस बैकग्राउंड है, तो थोड़ा मैनेज हो जाएगा. आई फाउंड कि मैं वो कर लूंगा, तो मैंने वहां से शुरू किया एम्बर एंड एम्बर से. देन मैंने जो अनुदीप ध्रुव के सर का ब्लॉग था, दैट्स व्हाई द फर्स्ट थिंग आई डिड आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम वाज राइटिंग अ ब्लॉग अबाउट माय सोर्सेज फॉर एंसर. क्योंकि मैंने उनका ब्लॉग फॉलो किया था, तो मैंने लास्ट तक अपने सोर्सेज के लिए उनका ब्लॉग फॉलो किया था, अनुदीप सर का. और जो मेरे प्राइमरी सोर्सेज थे स्टार्टिंग में, वो सारे वही थे जो उन्होंने अपने ब्लॉग में मेंशन किए. मैंने उनके ब्लॉग्स उठाया और उसके सोर्सेज के बेस पे सारे अपने नोट्स बना लिए. वो नोट्स काफी अच्छे नहीं थे क्योंकि वो 2017 के हिसाब से थे, और तब मैं ऑलरेडी 2019-20 में आ चुका था. तो ये मैं डिस्क्लेमर पहले ही मेंशन कर रहा हूँ. तो उसके बाद मैंने क्या हुआ, सारे नोट्स बना लिए उसमें से. मैंने उसके बाद उसमें सिर्फ वैल्यू एडिशन किया, जो जो सोर्सेज मार्केट में अवेलेबल होते हैं. जैसे अक्षर जैन की बुक आई थी, तो मैंने वहां से मेंशन किया. फिर इग्नू के नोट्स होते हैं, वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, वहां से एडिशन किया. एनपीटीएल पे बहुत सारे स्कॉलर्स होते हैं, उनके आर्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, उनके लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, वहां से पढ़ के थोड़ा एडिशन किया. तो दिस वाज हाउ आई स्टार्टेड एंथ्रो. मैंने वो किया. आंसर राइटिंग भी मैंने एंथ्रो की, जैसे मैंने जीएस की स्टार्ट की थी उसी टाइप से मैंने एंथ्रो की भी स्टार्ट की. पहले आंसर पढ़ लिया, उसके बाद में आंसर लिखने की कोशिश की, और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैंने अपने सारे नोट्स बना लिए थे. तो सेकंड क्वेश्चन इज कि मैंने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जो मैंने अपने मेन नोट्स बनाए थे पहले, तो वो ही क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में थे, वो भी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं थे. तो मैंने पहले ही 2 रीडिंग के बाद क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में और सिलेबस वाइज ही बनाए थे. तो मैंने जो भी आसपास की चीजें थी उनको एज अ डिफरेंट मटेरियल ही रखा, उनको अपना मेन नोट्स का सोर्स नहीं बनाया. जो माइक्रो नोट्स होते हैं, जो
जिनसे आप रिवाइज करते हो, रिवीजन वाले नोट्स होते हैं। उसको बनाने के लिए मैंने क्या किया कि अगर मैं इंट्रो लिख रहा हूँ तो इंट्रो का सिर्फ मैं स्कॉलर का नाम लिख रहा हूँ उसमें, कि सपोज टाइलर है तो इंट्रो टाइलर डेफिनेशन, दैट्स इट। तो मैं डेफिनेशन पूरी नहीं लिखूंगा, क्योंकि आप पहले अपने नोट्स पढ़ चुके हो, उन्हें रिवाइज कर चुके हो, तो अपने रिवीजन नोट्स में आप टाइलर की डेफिनेशन तो नहीं लिखोगे। आप सिर्फ मेंशन करो कि इंट्रो में टाइलर की डेफिनेशन। उसके बाद जैसे ये बॉडी प्रोसीड करती है, तो आप क्या डायमेंशन लिखोगे अपने आंसर में, वो लिख सकते अपने रिवीजन नोट्स में। जैसे कि अगर मैं अपने आंसर में लिखने वाला हूँ कि बॉडी में कि क्या क्या वर्क्स हैं, क्या स्टडी है, तो स्टडी का नाम, बुक का नाम, स्कॉलर की बुक का नाम, स्टडी का नाम, किस स्कूल से बिलोंग करते हैं। फिर कुछ एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल शॉर्ट में लिख लिया। फिर लिमिटेशन का एक सब हेडिंग। ऐसे अब मैंने एक आंसर लिखा, तो जो उसका रिवीजन नोट बनाया है मैंने वो सब हेडिंग फॉर्म में बनाया है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन के आंसर के लिए 6-7 सब हेडिंग है। अब 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, अब मेरी इसमें 6 सब हेडिंग आने वाली है, एग्जाम में नंबर काट के दिखाए, है ना। तो ये जब आप चीज सोच लोगे ना, अब मैं उसमें ना पूरी अपनी कहानी नहीं लिख रहा हूँ, मैं पूरा जो नोट्स में लिखा हुआ है वो नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने रिवीजन नोट्स से कंटेंट लिख रहा हूँ, ड्राइव उसको प्राइमरी सोर्स से कर रहा हूँ। टाइलर लिख रहा हूँ, टाइलर की डेफिनेशन प्राइमरी सोर्स से आ रही है, बट जा कंटेंट रिवीजन नोट्स कर रहा है। तो ऐसे सब हेडिंग्स फॉर्म में क्या क्या सब हेडिंग्स लिखने वाले हो अपने एग्जाम में, इसमें मैंने अपने रिवीजन नोट्स बनाए थे। एंथ्रो में जेनेटिक्स वाला पार्ट होता है, 9 से 12 चैप्टर होता है जेनेटिक्स एप्लीकेशन, वो तो बिल्कुल ही पूरा ऐसे बनाया था। जो सोशल कल्चर वाला पार्ट होता है उसके बनाना ऐसे नोट्स डिफिकल्ट होता है थोड़ा, बट लास्ट मोमेंट पे मैंने उसके भी समहाउ शॉर्ट नोट्स फॉर एग्जांपल जिस फॉर्मेट में मैं बता रहा हूँ ऐसे ही बना लिए थे। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन कि वो रिवाइज हो पाए थे कि नहीं हो पाए थे, डेफिनेटली रिवाइज हो पाए थे। मैंने जनरली टाइम नहीं होता है, जब आप जीएस लिख के आते हो और ऑप्शन लिखने जाते हो, जनरली टाइम नहीं होता है कि एक से ज्यादा बार रिवाइज कर पाओ। बट मैंने नोट्स अपने इस हिसाब से कैलकुलेटेड मैंने में बनाए थे कि मैं 2 बार रिवाइज कर लूँ। मैंने कहा 2 बार रिवाइज हो जाएगा तो शांति पड़ जाएगी कि अब तो पेपर ठीक जाएगा। होता क्या है कि मेंस का थोड़ा बैगेज होता है, अच्छा नहीं गया। लास्ट ईयर तो मैंने देखा था कि इथिक्स का पेपर इतना खराब आया था कि लोग 2 दिन तक कोट ही नहीं पाए, 2 दिन तक पढ़ ही नहीं पाए ऑप्शनल का। तो ऐसी चीजें भी होती हैं। तो जिस दिन आप एग्जाम देखे हो उस दिन पूरा रिफ्रेश मारता था मैं, उस दिन कुछ नहीं। नेक्स्ट डे से मेरा पूरा पहले से ही प्लान होता था कि 2.5 दिन में ही करना है, फिर 2.5 दिन में फिर से रिवाइज मार लेना है। तो समहाउ मैंने 2 बार रिवाइज कर लिया था। ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैंने सारे टॉपिक 2 बार रिवाइज कर लिए थे, बट आपको पता होता है कि एक बार रिवाइज जो हो गया है वो 2 बार दूसरी बार में क्या क्या करना है। तो ऐसे मैंने रिवीजन मैनेज किया अपने माइक्रो नोट से। Fine, good enough. So last thing before we take questions from some of the people, I know you will be short of time as well. As promised, like 1 hour we have. We still have 10-15 minutes. Okay. So I will not go into the interview preparation and all. Okay. You can just say a few words about the same. ठीक है, अपने मुंह से क्या बढ़ाई करवाना है यार अपनी, है ना? नहीं, The, इंटरव्यू प्रोग्राम इज वेरी गुड, बट हाँ इंटरव्यू की स्टेज के बारे में आई थिंक हम बाद में कभी बात करेंगे, हाँ बिकॉज वही वही आई अभी थिंक। नहीं, अभी नहीं. I just wanted, since you were there as a mentee at one more institute that you are mentioning. Okay, you can take the name. I do not have any problem. So I just wanted to know what is the role of basically as a mentor. Okay, because I know that people will join a number of mentorship programs as well. Okay, so you should tell them how can they observe their mentor, whether they are guiding them correct or not. Okay, I will not ask you to glamorize any of us whom you were associated. Okay, be aspirant. That's what I tell you again and again. And tell me if someone asks, the question is very simple. Suppose the people over here are going to join any mentorship program or they join. What are the things or checkpoints they should look for the mentor? And if they are not there, certainly the qualities or the uh, delivery is being compromised. Okay, I hope you got my question. ओके ओके ओके, फाइन फाइन। यस, Yeah. तो 2 चीजें उसमें बहुत जरूरी हैं कि क्या होता है कि हम लोग ना नंबर ऑफ टेस्ट को देख के जाते हैं कोई भी मेंटरशिप में, तो वो नहीं जाना चाहिए। आपको इम्प्रूवमेंट के सोर्सेज देख के जाना चाहिए मेंटरशिप के लिए, कि क्या इम्प्रूवमेंट ये जो मेरे मेंटोर है मेरे में करा सकते हैं। तो पहले तो आप अपनी चीजें देख लो कि आपको को क्या इम्प्रूव करना है। जैसे कि आई विल टेल कि मेरी जब मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा था तो प्री के पहले बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग नहीं हुई थी। सो वो इनर्शिया सबके साथ होता है, मेरे को भी बहुत ज्यादा फियर था कि मेरी आंसर राइटिंग कैसे हो। तो एट दैट टाइम के प्लेटफॉर्म था एड साथी करके, वरुण जैन सर का।
तो वो एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव कोर्स लेके आए थे अपना ये आंसर राइटिंग के लिए। अब सीन क्या होता है कि मैं एक सेल्फ स्टडी वाला पर्सन हूँ, बट मेरे को एक मेंटोर चाहिए कि मैं फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को गाइड कर दे कि क्या क्या सोर्सेस फॉलो करने हैं। जैसे कि मैंने सोसाइटी का बताया कि वो एनसीईआरटी फॉलो करनी है, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि क्या सोर्स फॉलो करना है। वो मेरे मेंटोर ने बताया कि ये सोर्स फॉलो कर लो, ये अच्छा है, तो मैंने वो विश्वास किया और वो फॉलो किया और अच्छा था। तो आप अपने मेंटर को देखो कि आपको बहुत ज्यादा सोर्स तो नहीं बता रहे, आपको बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजें तो नहीं बता रहे, बहुत ज्यादा टेस्ट बेस्ट तो नहीं लिखवा रहे कि सपोज आप टेस्ट में बहुत सारा टाइम खराब कर दो। आपके इंप्रूवमेंट सोर्सेज क्या है? जैसे कि मेरे में था कि लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम उनका सेशन था, तो हर ऑल्टरनेट डे उनका 5 क्वेश्चन वो लिखवाते थे, है ना। तो क्या है कि वो मुझे लगता था कि मेरी जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन बना रहेगा और आंसर राइटिंग हर सेकंड डे 5 क्वेश्चन में लिखता रहूंगा। तो वो आपका एक इम्प्रूवमेंट सोर्स हो गया। सेकंड, फिर आप कंटेंट देखो। पहला तो इम्प्रूवमेंट सोर्स हो गया। कंटेंट देखो कि आपका कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है वहां से कि नहीं हो रहा है। सपोज आपको सिर्फ गाइडेंस मिल रही है, कोई कंटेंट एडिशन नहीं हो रहा है, तो भी आप देख सकते हो कि क्या आपको वो वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, क्या जितना मनी इन्वेस्ट कर रहे हो कि उतना नहीं है। कौन कुछ कंटेंट एडिशन मिल जाता है तो थोड़ी हेल्प हो जाती है कि आपको इधर उधर के सोर्सेज में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि आप कोई भी सोर्स में जाते हो 100-200 पन्ने की बुक होती है, उससे निकालो। आपका मेंटोर अगर आपको प्रोवाइड कर रहा है वही 20-30 पेज में, तो इट्स गुड, इट्स अ गुड थिंग ना। तो एक कंटेंट वाली भी एक चीज होती है और एक वाली चीज होती है। तीसरा है कि आपका फीडबैक और आपका जो पर्सनल टच है, कि आप सपोज आपको कोई नीड है, आपको कोई पर्सनलाइज आपको चीजें पूछनी है, तो आप उनसे कितना टच में रह सकते हो या आप उनसे क्या चीजें पूछ सकते हो। तो मुझे लगता है कि वो तीनों चीजें आपको चक्कर में लेनी चाहिए बिफोर गोइंग फॉर मेंटरशिप। और टच में लेना इसका मतलब ऐसा होता है कि आई स्टिल रिमेम्बर, मैं तो नहीं करता था, मैं तो बहुत ज्यादा मतलब उससे ज्यादा करता था, कभी कभी कांटेक्ट करता था। बट आई हैव सीन पीपल की जो रात को 2 बजे भी फोन कर रहे हैं कि सर ये इशू हो रहा है। फिर 2 बजे तो नहीं करना चाहिए। बट द थिंग इज कि अगर आपका मेंटोर आपको टच में रह रहे हैं और आपको चीजें रेगुलर गाइडेंस एक जेन्युइन तरीके से विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव या उससे करा रहे हैं, तो इट्स गुड टू गो। ओके फाइन। सो आस्क सुब्रतो, उसने मुझे किया है 2-2 बजे भी मैसेज, ठीक है। अच्छा। ठीक है, fine. So nevertheless, on the lighter note, it was fine. So I'm done from my side. I hope you were able to go back into aspirant days, as I promised on the call that you will be able to look back, and whatever you have done, I will try to extend it from you in this session. Okay, so I think we have 5-7 minutes since Rij has some another engagement after 9. So those who wants to ask the question, just raise your hands. Okay. Okay, Ankit. And those who can turn on their camera, please do so. अभी तक हम ही दोनों का है, ठीक है, आप देख लेते हैं 2-4 शक्लें हम भी, है ना? Hello, am I audible, sir? Yes, Ankit. Yes, Please yes, go. yes. Yeah, sir. As like I am asking about my optionals, like for anthropology, like I am also opted my optional as anthropology. So, sir, like I read the basic materials as everyone says that, as Devish sir also said in his blogs, like what to read starting from initial. But sir, I like felt that I need a mentor or something like that to cope up with anthropology. So like for a long run, so like that I need some like an institute or that is needful to join in the beginning, or like because sir it's either optional, so I think we need some grip level knowledge in this subject, so that's why I'm planning to some Okay. some Okay, I got your answer, Ankit. So, see, if you have the time in your hand और आप थोड़ा invest करना चाहते हो, money भी invest कर सकते हो, then you can go for some mentorship for Anthro. I have taken this level of IAS test series, so I found it really good. वो इकलौती ही मैंने ली थी, तो आप देख सकते हो। करंदी इस तरह हमेशा अवेलेबल रहते हैं। रिमेम्बर, असद ने एक बार रात को 3-4 बजे भी मैसेज किया था, तो सुबह 5 बजे उनका रिप्लाई आ गया था। तो ही इज ऑल्सो लाइक दैट कि वो आपको गाइड कर देंगे। इवन वो क्या करते हैं कि जैसे कि अगर आप, आई रिमेम्बर कि लास्ट टाइम इस बार मैंने जब मेन सीरीज लिखी थी उनके यहाँ, तो मैंने बोला था कि फिर से लिख देता हूँ, लास्ट ईयर भी लिखी थी आपके यहाँ। उन्होंने बोला कि लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सेम टाइप की कंटेंट ही दूंगा, तो मैं कुछ आपका वैलिडेशन नहीं करा सकता, बेकार में 10,000 वेस्ट मत करो। बट फिर भी हमने ले ली थी वो। तो ऐसा है कि वो एक प्रॉफिट मोटिव से अलग हटके भी आपको बता सकते हैं चीजें। वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और बाकी मुझे लगता है कि आप सेल्फ स्टडी कर लो, उसके बाद जब आप टेस्ट सीरीज के लिए जाओ तब उनके पास चले जाना। एंड सर लाइक मतलब एंथ्रोपोलॉजी थोड़ा बेसिकली मतलब काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, जैसे सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी,
तो सर मतलब ऐसे कि आप कह रहे हो सर, जैसे बुक वगैरह जैसे जो बेसिक्स बुक्स है, तो सर उससे खुद से पढ़ने में उतना डेप्थ तक अंडरस्टैंडिंग हो जाए? क्योंकि जैसे जैसे फिजिक्स है, तो सर फिजिक्स भी हम लोग जैसे पढ़ते थे, जैसे मतलब मैं भी सर बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। तो जब मैंने आईआईटी जेई का एग्जाम दिया था, तो बेसिकली मैं आईआईटी कानपुर से हूँ। तो सर बेसिकली उस टाइम वैसे फिजिक्स में हम लोग की अंडरस्टैंडिंग होती थी कि हम कॉन्सेप्ट्स को समझते थे, तो उसके लिए पहले इनिशियली जैसे काइनेमेटिक्स से जो भी बेसिक चैप्टर्स थे, हम लोग ने सर वहां से स्टार्ट किए थे। सर कोई एक गाइडेंस चाहिए था टू जस्ट लाइक कॉन्सेप्ट्स को समझा दे अच्छे से, तब फिर दिक्कत नहीं आती थी चीजों को समझने में आगे जाके। तो सर वही से एंथ्रोपोलॉजी में भी ऐसे सर बाकी ऐसे फिजिकल या आपका आर्कियोलॉजिकल वो थोड़ा उतना मेमोराइजिंग वाला पार्ट है, आई थिंक सो। बट एंड सर लाइक ये सोशियो कल्चर, like anthropological theories and these chapters, so I think these are more conceptual, so sir like इसीलिए मेरे को लगा कि आई थिंक कोई सी अगर आप आईआईटी से हो और आप, तो आई थिंक कि आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हो, उतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सी मेरा सीन ये था कि जब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी एज वेल, तब भी मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था, तो मुझे मतलब बहुत ज्यादा जम नहीं रहा था, तब भी मैंने कोचिंग वगैरह नहीं ली। तो मेरा एक शुरू से हैबिट में था कि मुझे तो चीजें खुद ही पढ़ के समझनी है। अदरवाइज अगर आपको नहीं हो रहा है, तो यूट्यूब पे फ्रीली बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल होती हैं हर कॉन्सेप्ट की, हर चीजों की, वहां से मिल सकती है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि यू नीड समवन, देन डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट दिस करणदीप सर के पास आप जाके हेल्प मांग सकते हो, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। आई थिंक ही विल बी बेटर एबल टू गाइड यू। और मैं उन्हीं के पास गया था, तो आई कैन टेल अबाउट हिम ओनली, बाकी मेरे को आइडिया नहीं है ज्यादा। Okay, so Alok, you raised your hands, so I will ask you last question. So since we are short of time, other questions can be just, I will say, posted on this channel, and related to anthropology, he will just answer over there as well. Okay, so I will be taking the last question. Alok. तो सर एक्चुअली शायद क्वेश्चन का आंसर मिल गया। मुझे टेस्ट सीरीज के बारे में पूछना था अच्छा कि अच्छा। कोई डेमो या कोई टेस्ट सीरीज, क्योंकि अभी लिख रहा हूँ तो मुझे कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा मैं ऐड कर नहीं सकता हूँ, तो बेटर क्या रहेगा, कहाँ जाना सही रहेगा? सर ने आंसर कर दिया अलग अलग का। ठीक है, फाइन फाइन। So Sankalp, last question, since we are 1 minute have and Alok do not have any question. Sankalp Dikshit. यस सर, गुड इवनिंग। तो सर मैं बस ये पूछ रहा था कि जब मैं पीवाई के एनालिसिस करने बैठता हूँ, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था रेड जोन्स और साइक्लोन के जोन्स पे। ऐसे ही कभी कभी जीएस3 में कुछ आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन था, जैसे एक साल ब्लू एलईडी पे क्वेश्चन था। तो जैसे मैं अभी इकोनॉमिक्स पढ़ के इंडियन इकोनॉमी मैंने फिनिश करा, मैंने उसके पीवाई क्यों देखे। अब मेरे को कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन देखे जो कि मेरे को अपनी स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिले, जिस भी सोर्स से मैंने पढ़ा उसमें नहीं मिले। तो अब इसके लिए अप्रोच कैसे होनी चाहिए, और प्रीलिम्स के लिए पीवाई क्यू एनालिसिस कैसे करना है? मेंस के लिए तो मतलब यू कैन सी द क्वेश्चंस, बट प्रीलिम्स में तो यू कैन गो टिल 1997 और पता नहीं कितनी भी बुक्स आती हैं 23 इयर्स 24 इयर्स वाली। तो प्रीलिम्स का तो पीवाई आप क्यू ये एनालिसिस। प्रीलिम्स के लिए पूछ रहे हो प्री का, या मेंस के लिए पूछ रहे हो? सर प्रीलिम्स का तो मेरे को एनालिसिस करने का तरीका समझ नहीं आ रहा, और मेंस में जैसे कि कुछ आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उनको कैसे टैकल करना है? ओके, तो पहले मैं मेंस का बता देता हूँ। जैसे आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन आते हैं, तो इकोनॉमी में रिसेंट ईयर का ट्रेंड है, पिछले 3-4 साल से 17 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन वो आउट ऑफ द ब्लू फेंक रहे हैं। तो वो सभी के लिए है, तो उसमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है अपने को। सबसे पहले उसका टाइम बचा के कहीं और यूज करना है ना। वो क्वेश्चन आप लास्ट में अटेम्प्ट करो, और आप सपोज उसमें 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो क्योंकि सभी को नहीं आ रहा है, तो 4 से ज्यादा कोई लाएगा नहीं। आप थोड़ा बहुत लिख के आओगे, 2.5 आपके भी आ जाएंगे, ठीक है। तो Okay, sir. उनको ऐसे वैसे ही हैंडल करना है, और उस टाइम की जितनी लिमिटेड और पैरेक्टर नॉलेज होती है वहीं से हैंडल करते हैं। मैंने पेपर लिखा था, वो एलईडी ब्लू एलईडी वगैरह पूछा था, तो उसमें स्मार्टली थोड़ा काम करना होता है। यूपीएससी आपका उस टाइम पे कैसे स्मार्ट वर्क करते हो वो जज करना होता है। तो ब्लू एलईडी के बारे में थोड़ा बहुत जो भी पता था वो लिख दिया। उसके बाद क्या किया, उसमें एक और क्वेश्चन था, सब्सिक्वेंट क्वेश्चन, विच इज अबाउट एप्लीकेशंस। तो अगर आप पहला नहीं आता है, तो एप्लीकेशन वाला तो आता है ना, तो वो आप एप्लीकेशन लिखो, ठीक है। तो 1.5 पेज का मैंने एप्लीकेशन लिखा, उसके बाद मेरे 2 पेज भर के, 1 पेज नहीं भरा। और मेरे को 1 पेज भरना भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं तीनों पेज भरूंगा तो एग्जामिनर समझ जाएगा पूरा ब्लफ किया है, ठीक है। Yes, sir. क्योंकि आपको क्वेश्चन को इज्जत देनी है ना। वो यूपीएससी ने क्वेश्चन डाला इसलिए है कि थोड़ा आपको टेंशन में डाले। तीनों पेज भर दोगे तो समझ जाएगा कि आपने ब्लफ किया है फालतू में। 2 पेज इज्जत से लिखो, 1 पेज छोड़ दो, कोई बात नहीं है। वो जो टाइम है, वो टाइम आपने 1-2 मिनट तो बचा लोगे आप उसमें। तो 2 मिनट किसी और क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन में लगा दो, आप 1-1.5 नंबर वहां खींच के ले जाओगे, ठीक है। तो इस Yes, तरह sir, वो got पूरा पेपर मैनेजमेंट का चीजें होती है जो मेरे को करनी होती है। कमिंग टू योर प्रीलिम्स पार्ट, प्रीलिम्स में आई थिंक इकोनॉमी में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, और भी लिमिटेड एरिया, इन्फ्लेशन, बजट से कुछ 1-2 क्वेश्चन, बहुत लिमिटेड एरिया है यूपीएससी की। आरबीआई क्या करता है, ये बहुत लिमिटेड एरिया है। 1-2 क्वेश्चन है हर साल जो बाउंसर आते हैं। अगेन सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, तो वो बाउंसर क्वेश्चन आप लीव कर सकते हो। अदरवाइज वो बहुत लिमिटेड एरिया इकोनॉमी में, तो इनफेक्ट रिपीट भी हो रहे हैं।
बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो गए थे लास्ट ईयर भी। तो इकोनॉमी में आई थिंक पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से लिमिटेड एरिया थीम्स पे करो, वो सफिशिएंट होता ओके सर, है। आई थिंक यू कैन टेक one or two more questions. One or more. Okay, then Devanshi. Good evening, sir. Thank you so much, sir. I have been trying to connect to you. I just want to mention, like, Dvij Goyal, sir, is my senior, and I used to sit beside him in the school. I don't know if you remember or not. I went to school Which today school? also, at Diwan Public School. I am Devanshi Okay. Jain. I was in class 9th and you were in 10th. I Okay. when I saw your name in the list, so I felt inspired as well as little bad because I thought I would be the first from my school. So I was trying. I'm really sorry for your loss. It's all right, and I'm sure you would be remembering me. While, sir, actually, my question to you is like, I am failing in prelims last for my 3 attempts. I have given my 3rd attempt this year, and I was pretty much sure that I would clear the prelims. But I think I have missed this year. I think for around 2 to 3 questions, if I would have missed this. So, sir, my problem is that, like, I'm not able to decide and confine my resources for the prelims. Like in history, I'm not able to stick myself to the sources, and I'm very much afraid of the history as well as the environment. So can you please suggest me, like in history, somebody is saying Tamil Nadu books, and then I have read old NCRT as well, but I was not able to solve very much questions. Like I was able to solve only 3 to 4 questions this year out of the, so I'm like very much hodgepodge in my mind. And also my mother is like, she's saying, now you have wasted all 4 to 5 years, now just focus on anything else, any job. So I have decided, okay, I will teach also, since I have experience of teaching as a private tutor. After 12th I started, so I will teach as well this side and prepare also. So please, I really want a genuine source and limited source strategy. And also, can I Okay. come to your house and meet once? Because I live very near to you. Live in Apur. Okay. So coming to the last part. So I'll be coming after 5-10 days. So definitely we can plan something. Okay. Okay. Because I will be visiting my school as well. Some students are there. I need to talk to them. Coming to the first part regarding your sources, I have mentioned my sources. I think you need to stick to your sources. What is happening is whenever there is a question which is different from the syllabus, you feel like you have that insecurity that you have not read it, that Yes. you are not properly read like this. Na? So I think वो निकालना पड़ेगा. टॉपर नहीं बनना है, एवरेज पर्सन बनना है. और मेरा हमेशा से ये था कि एवरेज पर्सन रहना है, और एवरेज पर्सन से बस क्या करना है, थोड़ा सा ज्यादा कर देना है, यूपीएससी हो जाएगा. मेरा हमेशा से ये गोल था, टॉपर नहीं बनना है. एवरेज की तरह रहना है, एवरेज बंदे की तरह पढ़ाई करनी है, सब कुछ एवरेज की तरह करना है, सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर देना है. हर जगह थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे तो काम हो जाएगा. सिमिलर केस यहाँ पे है, पूरा सेम. आप प्रीलिम्स में भी जो भी सबके सोर्सेज हैं, कुछ अतरंगी करने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है. जो सब करने हैं हम वही करेंगे, हम बस वो अच्छे से कर लेंगे, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेंगे. तो बस इतना ही चाहिए, है ना. एक चीज है, एक मेरे को किसी ने बोला था, मेरे मेंटोर ने बोला था कि सपोज आप प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको कोई ऐसा लॉजिक आए कि आप ये सोच लो कि अरे ये तो एकदम ही मैंने नायाब सोच लिया है, कि ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा, तो डेफिनेटली आप ही गलत हो गए. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ही अतरंगी सोच लो, कि आप ही ऐसा कुछ लॉजिक सोच लो किसी के दिमाग में है ना. तो वही चीज है कि हर जगह एवरेज करते रहना, और जितना जो भी कंटेंट है छोटा, बस उसको अच्छे से पढ़ लेना है और उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर देना है. दैट्स इट. So can you repeat this last thing just once, that कि हमने कुछ अतरंगी सा सोच लिया, that last point which you. हाँ, जैसे कि आप प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको कुछ अतरंगी सा लॉजिक आ गया, आपने सोचा कि ये लॉजिक तो सिर्फ मैं ही सोच सकता हूँ, मैं ही सोच सकती हूँ, ये तो कोई और सोच ही नहीं, किसी ने और के दिमाग में आया ही नहीं होगा. आता है ना कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, तो डेफिनेटली तो आप ही गलत हो. ओके, है ना. क्योंकि एवरेज के लोगों के हिसाब से पेपर बनता है, अपने को एवरेज रहना है और उसी में थोड़ा एक्स्ट्रा कर देना है. अतरंगी लॉजिक अगर आपने सोचा है तो आप ही लॉस में हो उसमें. तो अपने को बहुत जेन्युइन सिंपल एवरेज तरह से सोचना है चीजों को लेके. Okay, thank you so much, sir. Now I am relaxed a bit. Thanks a lot. Okay, so I call it which over usage of brain rather than अतरंगी and all, कि आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो दिमाग तो गलत होगा, थोड़ा ही इस्तेमाल करना है. Okay, so do we need to take one more question or shall we wind up? हाँ, but we can take one more, then I'll go for it. Okay, fine. Jannat.
Good evening, sir. So my question is that कि prelims में हम जितना भी पढ़ लें 30 questions से ज़्यादा हम डायरेक्टली सोच नहीं पाते हैं, and that's why toppers recommend कि आप टेस्ट सीरीज लगाएं. तो टेस्ट सीरीज का कितना रोल रहा था आपकी प्रिपरेशन में, और हाउ कैन वी एनालाइज टेस्ट सीरीज कि हाँ टेस्ट तो लिखने हैं पर बाद में उससे हमें क्या फायदा मिलने वाला है. एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज कि प्रीलिम्स एंड मेंस का हमें सब बोलते हैं कि हाँ आपको टुगेदर प्रिपरेशन करना है, बट हाउ एग्जैक्टली वी नीड टू प्रोसीड विद दैट कि हाँ ओके वी आर डन विद द सोर्सेस, देन हाउ कैन वी गो फॉर मेंस प्रिपरेशन आफ्टर वी आर डन विद द प्री थिंग. Okay, so I'll come to the first question कि प्री में 30 से ज्यादा क्वेश्चन डेफिनेटली 30 में से ज्यादा किसी को नहीं आते हैं. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि जो आप में जब टेस्ट सीरीज कर रहे हो तो या आई विल से पीवाईक्यू जब आप कर रहे हो तो यू डेवलप सम लॉजिक्स. लॉजिक ऐसे नहीं आता, लॉजिक मींस कि यूपीएससी क्वेश्चंस में आपको कहां ट्रैप कर सकता है. जैसे कि आप अगर ऑब्जर्व करोगे पीवाईक्यू, जैसे वो बुद्धिज्म में महायान का हिनाया कर देगा, इस टाइप की चीजें थोड़ी थोड़ी चेंज कर देगा, जैनिज्म का बुद्धिज्म कर देगा. तो ये ट्रैप्स ना आपको पीआईक्यू से समझ में आ जाते हैं. जब आपको ट्रैप समझ में आ जाते हैं तो आप बहुत विजिलेंट हो जाते हो कि जो आप कर रहे हो, जो आप पेपर सॉल्व कर रहे हो उसमें क्या क्या क्वेश्चन में क्या क्या गलत चीजें हो सकती हैं, तो आप वो आइडेंटिफाई कर लोगे. तो क्या हो सकता है कि आप ना वहां से 20-30 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं इन छोटी छोटी लॉजिक से, ट्रिक्स से, या पेरिफेरल जो नॉलेज होती है आपकी वहां से. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल दिस विद वन एग्जाम्पल. जैसे कि 2 साल पहले क्वेश्चन आया था कि आई थिंक गोदावरी रिवर थी, कृष्णा रिवर का क्वेश्चन आया था कि डिफरेंट पार्क्स दिए हुए थे, नेशनल पार्क कहाँ से फ्लो होती है. अब उसमें बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि नेशनल पार्क कहाँ लाई करता है. तो अगर आप देखोगे तो उसमें बाकी सब ना नियर बाई थे, मतलब तमिलनाडु में थे, उधर थे. पापीकोंडा था वो ऊपर आंध्र प्रदेश में था. तो एक कॉमन सेंस है कि अब आंध्र प्रदेश में इतनी दूर है तो कहाँ से थोड़ी ना फ्लो करती होगी, उसके पास से तो कैचमेंट होगा नहीं. तो अब ये किसी बुक में नहीं मिलेगा. ये पेरिफेरल नॉलेज है और ये थोड़ी सी कॉमन सेंस है कि आपने क्या किया, क्वेश्चन देखा, मैप इमेजिन किया, देन आपने टिक किया. तो 30 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं. बाकी क्या होता है 15 से 20 क्वेश्चन प्योरली होते हैं वहां पर. उस टाइम पे आपका मेंटल पीस चेक कर होता है, मेंटल कामनेस, और कॉमन सेंस भी होते हैं, बहुत कॉमन सेंसिकल होते हैं. आई टेल यू. एक क्वेश्चन आया था जो एलिफेंट वाला क्वेश्चन था, बहुत न्यूज में था, बहुत न्यूज में रहा था उसके बाद कि मेल एलिफेंट हेड ऑफ द ग्रुप होता है या फीमेल होता है, लाइक दैट. और गेस्टेशन पीरियड केवल इतना ही हो सकता है. क्यों इतना ही क्यों हो सकता है? तो वाई, जब आप चीजों का पूछोगे ना कि वाई इतना ही क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी. कॉमन सेंस से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं वहां पे. तो आई वोंट से कि सब सॉल्व हो जाता है. 80 क्वेश्चन लगभग ऐसे हैं जो आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, 80 से 90 के बीच में. तो एक सही वो रहता है. 30 से 35 से ज्यादा डेफिनेटली शॉर्ट किसी को नहीं आते, बट पेरिफेरल नॉलेज, आपकी मेमोरी और आपकी कॉमन सेंस, लॉजिक्स, उसका यूज करके किया जाता है. हमने किया सेकंड क्वेश्चन, जो प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, तो वो आपको करनी चाहिए, वो बेनिफिशियल रहती है. क्योंकि अगर आप एक ईयर का टाइमलाइन लेके चलें तो काफी टाइम होता है. प्रीलिम्स के लिए पूरा टाइम नहीं दिया जा सकता. तो आप उसमें, और प्री और मेंस के सोर्स जैसे मैंने अभी बताया वो लगभग सेम भी होते हैं. तो जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, प्री के हिसाब से पढ़ रहे हो उसको, और प्रीलिम्स काफी दूर है, 2-4 आंसर लिख के देख लो, पीआई के दिखा लो, 2-4 आंसर भी लिख लो साथ के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि मेंस के हिसाब से क्या चीजें रिमेंबर करनी है, प्रीलिम्स के हिसाब से क्या पढ़ना है. That's it. सर आई हैव वन मोर क्वेश्चन. सर जैसे हम पर्टिकुलर कोचिंग से कोई सब्जेक्ट कर रहे हैं, एज आई हैव डन पॉलिटी फ्रॉम विजन एंड ऑल, तो उसके बाद हमें इज दिस कंपल्सरी टू गो फॉर स्टैंडर्ड बुक अगेन, क्योंकि दो रिसोर्सेज एक ही चीज के लिए लाइक करना, और लाइक इसमें बहुत ज्यादा टाइम. Sorry, can you please repeat? Sir, I'm saying that if someone is doing कोई भी subject coaching say, as for example I have done polity or another subject from any Okay, I got your question. Okay, I got your question. I got your question. और ये मैंने अपने जूनियर्स को इनको मैं गाइड कर दूं, उनको बहुत बार आंसर किया है. See, there is no substitute for book. रिगार्डलेस ऑफ आप कोई भी कोचिंग का फॉलो करें, तो जो बेसिक बुक्स है, जैसे अगर मैंने लोगों को देखा है कि अगर लोग क्या कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ ही नहीं रहे हैं, कि दे आर कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन कोचिंग मटेरियल. तो आई वुड से दिस इज अ डिजास्टर्स थिंग, है ना, कि अगर आप लक्ष्मीकांत पे जा ही नहीं रहे हो और केवल सिर्फ कोचिंग मटेरियल पर डिपेंड कर रहे हो सकता है मेंस के लिए वो सफिशिएंट है, डेफिनेटली सफिशिएंट हो सकता है प्रीलिम्स में, बट ऐसा नहीं होता है. तो बेसिक बुक्स को तो छोड़ना ही नहीं है. वो तो आपको ऐसा है कि होता है ना कि मस्ट चीज है, मस्ट चीज तो करके ही जानी है. कोचिंग का मटेरियल है तो यूज इट एट वैल्यू एडिशन सोर्स, या जहां से आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है, बट बेसिक बुक नहीं छोड़ना है. आई वोंट रिकमेंड.
Okay, sir, I have to go. Let's wind up. So while take winding some up other- again, like I would like to end on just a single note, like light hai Hedwig, so you can conclude it light with है। that. बाकी light है। हाँ, बाकी लाइट है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है जीवन में, है ना। लाइट रखना है। तो मैं, हमारे लोग का ग्रुप था, सबको मैं लाइट बोल रहा हूँ। मैंने टी शर्ट भी प्रिंट करा रहा हूँ सर, लाइट है की, और आपको भी भेजूंगा। प्रिंटिंग के लिए चली गई है। ठीक है, okay then, thank you very Light much है। for coming there and guiding all of them, and Thank you, sir. thank you so much. Okay, chalo, see you soon, hopefully this time in Delhi. Chalo, Jai Hind. Bye. Bye.